dear learners. Welcome to the new session of Science Class 2nd, chapter number 6, that is about bones and muscles. In this session today, students, we will learn about these two very basic and very important organ of our body known as bones and muscles. They are very important as they are the only which are responsible for making the basic structure of our body. We are able to stand straight because of these both organs only. So basically in this session, we will learn about the skeleton, bones, muscles, and also the concept of posture. Alright. So first of all, you have to look at the pictures and unscramble the letters to write the name. So यहाँ पे कुछ pictures given है. इनके नेम को लिखने के लिए हमें यहाँ पे इन लेटर्स को अनस्क्रैम्बल करना है and इन पिक्चर्स के नेम्स we have to write over here. So you can see what is this? This is ear. So we will unscramble it and we will write E-A-R, ear. And this is hand. H-A-N-D, hand. This is eye. E-Y-E-I. This is finger. So F-I-N-G-E-R, finger. Next, these are teeth. So T-E-E-T-H, teeth. And the last is nose. N-O-S-E, nose. Alright. Now, the very first topic is skeleton. You can see this is the human skeleton they have shown you. So inside our body, there is a framework of bones known as skeleton. Our body is like a machine. It is made up of bones and muscles and they give shape and support to our body. So हमारी body students एक machine की तरह है जो bones and muscles की बनी है and ये bones and muscles हमारी body को shape and support provide करते हैं. Some parts of our body, हमारी body के कुछ parts क्या होते हैं काफी hard है while others are soft. कुछ part काफी soft होते हैं. So the hard part, तो students आपके body के जितने भी hard parts है, they are called bones. And the soft parts है, they are called muscles. And both bones and muscles are covered with skin. And ये दोनों ही चीजें bones and muscles किससे covered है? Skin से. Both bones and muscles work together to help our body and its parts to move and work. And all the bones in our body join to form a skeleton. और जैसे कि ये बोन्स एंड मसल्स दोनों ही चीज़ें मिलकर क्या करती हैं हमारी बॉडी को एंड बॉडी के जो डिफरेंट पार्ट्स हैं उन्हें मूव एंड वर्क करने में हेल्पफुल होती है. हमारी बॉडी में जितनी भी बोन्स है ये सारी बोन्स ही मिलकर क्या बनाती है ये स्ट्रक्चर बनाती है दैट इज कॉल्ड स्केलेटन. एंड स्केलेटन हमारी बॉडी को शेप एंड सपोर्ट प्रोवाइड करता है. ऑलराइट. Now the next topic which we have is that is bones. So there are 206 bones in the human body. एक adult human body के अंदर total 206 bones होती है. They are joined together at the joints. And ये सारी bones joined रहती हैं कहाँ पे? एक place पे जिसे joint कहा जाता है. And these joints, ये joints जो हैं ये एक दूसरे के over move नहीं कर सकते. The joints in the fingers helps to hold and pick up the things. जो हमारे fingers में joints है इनमें इनके थ्रू आप चीज़ों को hold कर पाते हो चीज़ों को उठा पाते हो. Alright. The joints at the knee and elbow. इस तरीके से आपकी knees आपके elbows में जो joints present है वो आपको क्या करते हैं bend करने में stretch करने में helpful करते हैं. The thigh bone. हमारी जो थाई बोन है वो सबसे लॉन्गेस्ट बोन होती है एंड हमारी ईयर बोन जो है सबसे स्मॉलेस्ट बोन होती है. सो यू हैव टू रिमेंबर दीज फैक्ट्स. ऑलराइट. नेक्स्ट टॉपिक व्हिच वी हैव इज दैट इज मसल्स. सो मसल्स आर फ्लैशी बंडल्स दैट लाई बिलो द स्किन. हमारे स्किन के नीचे जो फ्लैशी बंडल्स है वो मसल्स कहलाते हैं एंड हमारी बोन्स जो है दे आर कवर्ड विद मसल्स ओनली. राइट. There are about 600 muscles in our body. हमारी body में 600 muscles होती हैं around. And these muscles are attached to the bones. ये सारी muscles हमारी bones के साथ attached होती हैं. Bones cannot move on their own. The muscles helps the bones to make them move.
सी स्टूडेंट्स, जो बोन्स हैं वो खुद से मूव नहीं कर सकती हैं। एक्चुअल में ये मसल्स जो कि बोन्स के सराउंडिंग्स में होती हैं, ये मसल्स ही बोन्स को हेल्प करती हैं मूव करने में। देयर आर डिफरेंट टाइप्स ऑफ मसल्स इन डिफरेंट पार्ट्स ऑफ आवर बॉडी। हमारी बॉडी के डिफरेंट पार्ट्स में डिफरेंट टाइप्स की मसल्स प्रेजेंट होती हैं। द मसल्स इन द आर्म हेल्प अस टू लिफ्ट एंड होल्ड द थिंग्स एंड दे हेल्प अस टू डू वर्क। अगर बात करें हमारे आर्म मसल्स की, तो हमारे आर्म्स में जो मसल्स हैं उनके थ्रू आप चीज़ों को होल्ड कर पाते हैं, लिफ्ट कर पाते हैं, एंड यू आर एबल टू डू वर्क बिकॉज ऑफ दीज ओनली। ऑलराइट, द मसल्स इन द लेग हेल्प अस टू वॉक, रन, बेंड एंड स्ट्रेच। ठीक है, इसी तरीके से आपकी जो लेग में मसल्स प्रेजेंट है वो आपको वॉक करने में, रन करने में, बेंड करने में, स्ट्रेच करने में हेल्प करती है। आई मसल्स, आपकी आईज की जो मसल्स हैं उनके थ्रू यू कैन सी ऑन ऑल साइड्स बाय मूविंग द आई बॉल। आप चारों तरफ देख सकते हो अपनी आई बॉल को मूव करके बिकॉज ऑफ द आई मसल्स। द मसल्स इन द नेक हेल्प अस टू मूव अवर हेड। आपके नेक में भी मसल्स प्रेजेंट है जिसकी वजह से आप अपने हेड को इस तरीके से कहीं भी मूव कर सकते हैं। राइट, नेक्स्ट इज व्हाट, एक्सरसाइज मेक्स मसल्स स्ट्रॉन्ग। अगर बात करें एक्सरसाइज की तो वो आपके मसल्स को स्ट्रॉन्ग बनाती है। ठीक है, सो मसल्स बिकम स्ट्रॉन्ग व्हेन वी यूज देम रेगुलरली, सो वी शुड एक्सरसाइज टू मेक आवर मसल्स स्ट्रॉन्ग। सो मसल्स स्ट्रॉन्ग कब होती है, जब आप उन्हें रेगुलरली यूज करते हो। इसलिए हमें एक्सरसाइज करनी चाहिए अपनी मसल्स को स्ट्रॉन्ग बनाने के लिए। एक्सरसाइज टोन ऑफ द मसल्स एंड मेक्स देम स्ट्रॉन्ग। एक्सरसाइज करने से आपके मसल्स को एक शेप मिलती है, वो टोन होती है एंड वो स्ट्रॉन्ग बनती है। वेल डेवलप्ड मसल्स, जो वेल डेवलप्ड मसल्स होगी वो आपकी बॉडी को हेल्दी एंड स्ट्रॉन्ग बनाएंगी। प्लेइंग, रनिंग, जॉगिंग, स्विमिंग, साइकिलिंग, ये सभी क्या है, डिफरेंट वेज है एक्सरसाइज के, डिफरेंट फॉर्म्स है एक्सरसाइज की। वी मस्ट एक्सरसाइज एंड ईट हेल्दी फूड। हमें रोज यानी कि डेली एक्सरसाइज करनी चाहिए एंड उसके साथ साथ हेल्दी फूड खाना चाहिए अपनी बोन्स एंड मसल्स को स्ट्रॉन्ग बनाने के लिए। जैसे कि वी शुड टेक मिल्क, fruits and vegetables on a regular basis. Now the next topic which we have is that is posture. What is it? The way we sit, stand and walk and move is called posture. आप किस तरीके से बैठते हो, खड़े होते हो, वॉक करते हो, मूव करते हो, the way you sit, stand, walk and move, that is called posture. एंड वी मस्ट सिट एंड स्टैंड। हमेशा हमें जब भी हम बैठते हैं या खड़े होते हैं तो आपको स्ट्रेटली सिट और स्टैंड करना चाहिए, अपनी बैक बोन को बेंड किए बिना, विदाउट बेंडिंग योर बैक बोन्स। वी मस्ट वॉक अपराइट, हमेशा सीधा आपको वॉक करना चाहिए, सीधे खड़े होके। एंड दीज आर द करेक्ट पोस्चर्स, इन्हें ही हम करेक्ट पोस्चर्स कहते हैं। The good and correct posture gives proper shape to our body. We must sit straight when we work on our computer. जब आप एक अच्छा पोस्चर रखते हैं तो उससे आपकी बॉडी को एक अच्छी शेप मिलती है एंड इसीलिए आपको हमेशा स्ट्रेट बैठना चाहिए। अब आप जब कंप्यूटर पे भी वर्क कर रहे हैं सो यू शुड ऑलवेज सिट स्ट्रेट। ऑलराइट, स्टैंड इन फ्रंट ऑफ अ मिरर। व्हाट दे सेइंग कि आप एक मिरर के सामने खड़े हो, सी इफ योर पोस्चर इज गुड और बैड, एंड तब आप देखो कि क्या आपका पोस्चर सही है या गलत। एंड डू द सेम बाय सिटिंग एंड वॉकिंग। इसी तरीके से एक बार बैठ के एक बार वॉक करके देखिए कि आपका पोस्चर सही है या गलत, एंड ट्राई टू मेंटेन अ गुड पोस्चर फॉर योर बॉडी। नाउ लेट अस रिकॉल, सो ह्यूमन बॉडी किसकी बनी है, बोन्स एंड मसल्स की। बोन क्या है, बोन आर द हार्ड पार्ट्स ऑफ द बॉडी एंड मसल्स आर द सॉफ्ट पार्ट्स ऑफ अवर बॉडी। देन इफ वी टॉक अबाउट स्केलेटन, तो स्केलेटन क्या है, बोन्स का फ्रेमवर्क जो हमारी बॉडी को शेप एंड सपोर्ट प्रोवाइड करता है। नेक्स्ट, हाउ मेनी 206 bones are present in the human body and about 600 muscles are present in the human body. And if we talk about posture, so correct posture gives proper shape to our body and makes us look smart. अगर आप अपनी बॉडी का करेक्ट पोस्चर रखते हैं so उससे आपकी बॉडी को एक अच्छी शेप मिलती है and also you look smart because of correct posture. Alright, so that was all about bones and muscles and also about some postures. And I hope you must have understood the chapter very carefully. Let's meet in the next session. Till then, keep doing well.
and thanks to all.